ये लेट मी स्टार्ट मैम। चलें ठीक है। अभी वैसे 85 को हुए हैं सिर्फ कोई बात नहीं पार्टिसिपेंट्स। मैम, वो आ जाते हैं, आप लेक्चर स्टार्ट करें वो आ जाएंगे। चलें ओके ओके ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जितने टाइम पर आए हुए हैं वेरी गुड, और जो लेट हैं उनके लिए वेरी बैड एज यूजल। क्लास में लेट कमर्स और यहाँ भी लेट कमर्स। जी येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या डिस्कस किया था? फोटो केमिस्ट्री ऑफ द वीएन हमने डिस्कस किया था, एंड वी हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल ऑल द लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। Yesterday we left over at color vision and color deficiency. कलर विजन जो है, पहले भी आपको बताया था कि सी से आप कौन से याद रखें, और ये याद रखें कि जो कलर विजन है दैट इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोन्स। तो यंग जो Helmholtz theory of color vision in human, they postulate that the color vision is your humans postulate that color vision जो है that is existence of three kinds of cones जो हैं present होते हैं in humans. These are going to detect the different types of the color. Each color जो pigment है that is containing a separate or different photopigment which is going to be specifically sensitive to any one of the three primary colors. Primary colors अब कौन कौन से हैं? Blue है, green है and red है। और कोई भी जो कलर जो परसीव करते हैं आप, दैट इज गोइंग टू बी perceived because of the sensation of any given color, which is being determined by the relative frequency of the impulses which are arising from each of these three types of the color system. What are these three type of color system? These are the red, blue and green. These are the primary colors. और जितनी वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब होगी कोन से, वही कलर आपको परसीव करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू understand, and this theory has been provided by the young Helmholtz theory of color vision. जी, इसके बाद ये है कि जो परसेप्शन है जो कलर विजन की, दिस इज येस्टरडे भी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी, इसमें देखें कि जितनी वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन हुई है कौन से, उसी के साथ वो स्पेसिफिक कलर आएगा। और वो कौन कौन सी वेवलेंथ्स हैं? दीज आर द वेवलेंथ्स इन केस ऑफ ब्लू कलर। अगर हम ब्लू कलर की बात करेंगे तो रेड वेवलेंथ कितनी होगी, ग्रीन की वेवलेंथ कितनी होगी, ब्लू की कितनी होगी। यानी कि ब्लू में अगर 445 नैनोमीटर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच हैज बीन एब्सॉर्ब्ड बाय द कोन्स, तो परसेप्शन आएगी ब्लू कलर की, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0097. Similarly, if the perception is of green color, the 535 nanometer wavelength frequency light has been absorbed, and this is a ratio of the red, green and blue color wavelengths, that is 31, 67 and 36. This is going to be the perception of green color. And then if talk about red color, the longest इसकी wavelength है which has been absorbed by the cones, and that is 570 nanometer. If it is the perception of the orange color, then the lights red, green and blue which is going to be reabsorbed are the wavelengths 99, 42 and 0, and the color perceived is orange color. Yellow color, red, green and blue is 83, 83 and 0. So these are the blue, green, red, orange, yellow different colors which are according to the wavelength the cones will absorb, and your visual cortex will perceive these different types of the colors. How the white color is going to be perceived? This is very important. The perception of white light depends upon equal stimulation of all the red, green and blue cones, and this is going to give the sensation of seeing white color. There is no single wavelength of a white color corresponding to white. Instead, white is a combination of all the wavelengths of the spectrum. So equal stimulation अगर होगी हमारे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की, जो कि इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद परसीव होगा तो कलर व्हाइट नजर आएगा। The perception of white can be achieved by stimulating the retina with the proper combination of only 3 chosen cones that stimulate the respective type of cone about equally. यानी कि equally तीनों cones red, blue and green जो है वो स्टिमुलेट होंगी रेटिना में, और उसके बाद जो परसेप्शन आएगी दैट विल बी ऑफ
white color. So there is no specific wavelength for white color. This is a diagram which is showing the degree of stimulation of the different color sensitive cones by monochromatic lights of the four colors, that is blue, green, येलो and ऑरेंज. ऑरेंज की हमने बात की थी कि इस पर इस कलर उसकी फ्रीक्वेंसी पर होगा, रेड इज ओवर दिस एंड ग्रीन ओवर हेयर एंड ब्लू सबसे जो अर्लियर है या कम वेवलेंथ पर ये कोन्स को स्टिमुलेट करके कलर जो है परसीव कर सकते हैं. सो कलर परसेप्शन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ कोन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोन्स हैं, डिपेंड करता है कि किस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की जो आपकी लाइट फ्रीक्वेंसी है दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द स्पेसिफिक कोन्स, रिस्पेक्टिव कोन्स ब्लू, ग्रीन या रेड. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेड की या ऑरेंज की. तो उसके अलावा जो है कि परसेप्शन ऑफ वाइट लाइट जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी तीनों जो हैं simultaneously similar spectrum of wavelengths are going to be stimulated and going the perception of white light. So three types of the cones which are going to detect, and then there is specific ganglion cells which are going to pass through the cones. Then the wavelengths will be absorbed through the ganglion cell through parvocellular pathway or excellular pathway, and then the wavelength then this stimulation will goes to the specific areas of lateral geniculate body of the thalamus, as thalamus is the sensory policeman of your body, and then finally it is going to reach in the visual cortex. अब visual cortex में क्या है? Visual cortex में there are the sections of the visual cortex where group of the neurons that are going to be sensitive to color assemble in cylindrical shapes in the form of color blobs, and colors are going to be finally perceived in the visual cortex. Start ये हो जाते हैं retina में color perception, but finally it is going to be perceived in the visual cortex. So how the colors are going to be perceived? There are three types of the cone. कौन-कौन से हैं? Red, blue और green color के cones हैं. अब ये तीनों कोन्स जो है स्टिमुलेट होंगे, लाइट जो है वहां से स्टिमुलेट करने के बाद गैंग्लियन सेल में जाएगी. कौन से गैंग्लियन सेल्स हैं? एक्स टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे सारे. और पाथवे कौन सा है? पार्वोसेलुलर पाथवे है. देन पार्वोसेलुलर पाथवे के बाद ये स्टिमुलेट करेंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस को. वहां से ये फाइनली विजुअल कॉर्टेक्स में जाएंगे. अब विजुअल कॉर्टेक्स में ये किस फॉर्म में जाएंगे? कलर ब्लॉब्स की फॉर्म में. जो विजुअल कॉर्टेक्स है दैट हैज बीन सेक्शनड, एंड वहाँ जो है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि कलर जो सेंसिटिव है कलर को, एंड दे असेंबल इन द सिलेंड्रिकल शेप, एंड फाइनली द विजुअल कॉर्टेक्स इज गोइंग टू डिटेक्ट कि व्हाट कलर इज प्रेजेंट व्हेन यू आर सीइंग समथिंग. In some cases there can be color blindness. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें inheritedly या congenitally these color perception is absent. That is called as color blindness. Like if the red color blindness is present, then that condition is called as protonopes. In those persons inheritedly red cones जो हैं वो present नहीं होंगे. अगर उनमें red cones present ना हो तो that condition is called as protonopes. ये आप प्रैक्टिकल भी करोगे, लेकिन यहाँ आप गौर से टर्मिनोलॉजी को लर्न कर लो. एमसीक्यूज भी आ सकता है और आपसे कलर परसेप्शन का मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं. सो अगर रेड कोन्स डेफिशिएंट है किसी पर्सन में congenially यानी कि पैदाइशी तौर पर, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनॉप्स. इफ ग्रीन कोन्स आर डेफिशिएंट देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्यूट्रिनॉप. इफ ब्लू कोन्स आर डेफिशिएंट देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्राइटिनॉप और ब्लू वीकनेस. ज़्यादातर इसको ब्लू वीकनेस भी कहते हैं, लेकिन ट्राइटोनॉप्स भी है. सो रेड, ब्लू एंड ग्रीन cones are absent and they are called as red cones deficient protonopes, green cones deficient deuteronopes, blue cones deficient, the condition is called as tritonopes. जो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है ये अक्सर जो है इकट्ठी होती है, and the person with loss of red cone is called as a protonope. The overall visual spectrum is noticeably shortened, क्योंकि हमने कहा था इसकी longest wavelength है, तो longer wavelength जो है वो end हो जाती है because of the lack of red cones. Whereas color blind जो people है they are who are going to lack green cones is called as a deuterinope. So this person has a perfectly normal visual spectral width because red cones are available to detect the longer wavelengths red color.
whereas in case of जो deuterinops हैं, blue color weakness is present, and this condition is called as your deuterinops. So this is going to called as your weakness, blue weakness. So this is person has perfectly normal visual spectral width because जो green है उसमें इतनी ज़्यादा wavelength नहीं है, बल्कि जो spectral width है that are going to available to detect the longer wavelengths, that are red wavelengths are going to be detected. So two types की अभी हमने color blindness की है. Number one is red green color blindness, and second is that is called as protonop, and blue color blind person who is going to lack green cones is called as a deuterinops. ठीक हो गया? So this is very important कि आप इसको learn कर लें कि deuterinops हैं वो कौन से हैं, वो green color की blindness के हैं, और protonops कौन से हैं, वो आपके जो हैं वो रेड कलर की जो ब्लाइंडनेस है उसको आप कहेंगे प्रोटोनॉप्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस की अब कॉन्जेनिटल इंपॉर्टेंस ये है कि दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स इन द केस ऑफ मेल्स. मेल्स में होगी. व्हाई? बिकॉज दिस जीन्स फॉर दिस रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट इन द X chromosomes. So because the X chromosomes in male is only present on XY होता है, इसकी जो chromosomal presentation है एक X है, तो so this is going to be the disease will present, and this color blindness is passed always from mother to son, and the mother is said to be about a color blindness carrier क्योंकि उसमें double X है तो वो present नहीं करेंगे. So 8% of all women who are कलर ब्लाइंडनेस कैरियर्स, जो 8% वुमेन्स हैं वो कलर ब्लाइंडनेस कैरियर्स होती हैं, और ये जो है एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. सो अभी हमने क्या बात की थी कि कौन से होते हैं प्रोटोनॉप्स. प्रोटोनॉप्स क्या है? रेड ग्रीन. तो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस किस में होगी? मेल्स में होगी, और सिर्फ जो कैरियर्स होंगी वो फीमेल्स होंगी, और ज़्यादातर सन्स को प्रेजेंट करेंगे. Then there is another condition which is called as blue weakness or tritinops. Only rarely blue cones are missing, although sometimes they are underrepresented. It is a genetically inherited disorder which is going to present as blue weakness. The persons are unable to detect the blue color. These color weaknesses जो हैं can be detected with the help of your Ishihara's chart, Edridge Green Lantern test, or Holmgren colored wool test. So these are the tests which can be asked in your exam. और प्रैक्टिकल एग्जाम में आप देखोगे इशिहारा चार्ट, एक चार्ट होता है जिसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, और पेशेंट को दिया जाता है, पेशेंट से कहा जाता है कि इसको आप डिटेक्ट करो कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है. अगर तो वो इजीली बता देंगे तो इट्स मीन कि उसकी जो है कोई कलर वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर जो है उनको प्रॉब्लम हो डिटेक्ट करने में, नंबर उल्टा पड़े, तो देन दिस कैन बी लेबल्ड एज कि रेड ग्रीन वीकनेस, रेड ग्रीन उसको प्रॉब्लम है, प्रोटोनॉप्स हैं, वो ड्यूट्रीनॉप्स हैं, ग्रीन है उसको प्रॉब्लम कलर, या वो ट्राइटोनॉप्स है, ब्लू कलर वीकनेस है, ब्लू वीकनेस है. एंड सेकेंड टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एज एडरिज ग्रीन लैंटर्न टेस्ट और होमग्रेन कलर्ड वूल. डिफरेंट टाइप्स की वूल देख के भी ये टेस्ट जो है वो किया जा सकता है. सो दिस इज प्रेजेंटेशन ऑन द जो है आपको जो इशिहारा चार्ट है, दैट इज गोइंग टू बी एक चार्ट होता है, उसमें ये डिफरेंट कलर्स के जो हैं आपको दिखाए हुए जाते हैं. ठीक है. तो दीज आर, ये जो नॉर्मल पीपल है उसको 74 पड़ेगा, जो कलर ब्लाइंड है वो सिर्फ ग्रीन पड़ेगा और इसको 21 भी पढ़ सकते हैं. जो नॉर्मल पर्सन है इसको 42 पड़ेगा, लेकिन जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो अगर रेड है उसमें जो प्रोटोनॉप है तो वो 4 को नहीं पढ़ सकेगा या 2 को नहीं पढ़ सकेगा. ठीक है. सो दीज आर द color weaknesses and color deficiencies and perception of the color, which is with the help of absorption of the wavelength and stimulation of the cones, and finally detection with the help of visual cortex. So if we discuss the different functions of the retina, which are the neural functions of the retina, तो different neuronal cell types जो हैं वो हमने पहले भी layers में पढ़े थे. अगर हम rods and cones से start करें तो these are the photoreceptors. वहाँ से signal जाते हैं outer plexiform layer में.
अब आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर से सिग्नल्स जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ बाइपोलर सेल्स भी थे, हॉरिजॉन्टल सेल्स भी थे. नंबर 1 rods and cones, then there is outer plexiform layer से bipolar cells, फिर bipolar cells से horizontal cells जो कि lateral inhibition में help करते हैं, inhibitory होते हैं. जो horizontal cells हैं वो horizontally जो signals हैं वो भेजते हैं outer plexiform layer में from rods and cones to bipolar cells. Then bipolar cells सबसे पहले आ गए rods and cones, secondly आ गए आपके horizontally और to the bipolar cells. जो bipolar cells हैं वो vertically signal send करेंगे rods and cones को भी from the rods and cone and horizontal cells to the inner plexiform layer. ऊपर क्या था, rods and cones थे, फिर आपके horizontal cells थे, फिर bipolar थे और फिर ऊपर से outer plexiform layer से आप inner plexiform layer में आते हैं जहाँ के फाइनली वो सिनेप्स करेंगे गैंग्लियन सेल्स में. और गैंग्लियन सेल के बाद कौन सी आती है आपकी ऑप्टिक नर्व आती है. गैंग्लियन सेल्स भी हैं और वहाँ आपके एमाक्राइन सेल्स भी हैं. जो एमाक्राइन सेल्स हैं वो दोनों डायरेक्शंस में सिग्नल भेजेंगे. वो डायरेक्टली बाइपोलर सेल से गैंग्लियन सेल्स को भी भेजेंगे या फिर हॉरिजॉन्टली विद इन द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. तो बाइपोलर सेल्स टू दी गैंग्लियन सेल्स और अदर एमाक्राइन सेल्स को भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे. फाइनली जो गैंग्लियन सेल्स हैं वो आउटपुट सिग्नल्स रेटिना से ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व से फाइनली विजुअल कॉर्टेक्स इनटू द ब्रेन इंफॉर्मेशन जाएगी. एक 6 टाइप ऑफ द सेल्स भी प्रेजेंट हैं जिनका नाम तो इतना नहीं पता, विच आर प्रोमिनेंट इन द इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स. दिस टाइप ऑफ द सेल्स सेंड सिग्नल इन द रिट्रोग्रेड फैशन. रिट्रोग्रेड का मतलब है कि पीछे की तरफ दोबारा सिग्नल भेजते हैं, यानी कि रॉड्स एंड कोन्स की तरफ दोबारा जाएगा इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में से आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में. पहले तो हम आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर से इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में आए थे, तो यहाँ जो है सिग्नल्स वो आउटर प्लेक्सिफॉर्म सिग्नल की तरफ दोबारा वापस जाते हैं फ्रॉम द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. दीज सिग्नल्स कैसे हैं वो इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं एंड दे आर बिलीव्ड टू कंट्रोल लेटरल स्प्रेड ऑफ द विजुअल सिग्नल्स by the horizontal cells in the outer plexiform layer. This role is very important of the 6 type of the cells in the control of degree of contrast in the visual image. यानी कि contrast का क्या मतलब है कि black color कौन सा है, white color कौन सा है, different colors की और contrast में कि on off phenomena क्या है, all that is going to be held by the interplexiform cells and by the retrograde stimulation. So most important neural functions of the retina can be described with the help of all cells in different layers. Then there is ये हमने पहले भी कल भी पढ़ा था कि जो कोन्स जो कि आपके फोविया सेंट्रलिस या सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द जो रेटिना है वहाँ डिफरेंट है और इसी तरह जो परसेप्शन ऑफ लाइट है वो भी डिफरेंट है. फाइन विजुअल अक्यूटी है, डिटेल्ड विजुअल जो फंक्शंस हैं वो डिटेल्ड विजन जो है वो स्टडीड की जा सकती है इन द फोविया सेंट्रलिस एज कंपेयर टू पेरिफेरल रेटिना. So cones are thin and long and cylinder type in case of fovea centralis and light fall directly on photoreceptors where all layers are pulled aside in the case of fovea centralis. Whereas if you talk about the peripheral retina, the peripheral retina are fatter, the light does not fall directly and this is in case of fovea centralis there is 1:1 connection with बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक सेल्स. यानी कि एक कोन होगी, एक बाइपोलर सेल होगा एंड गैंग्लियोनिक सेल होगा. दीज फोविया सेंट्रलिस यहाँ लैकिंग है रॉड्स, यानी कि रॉड्स नहीं प्रेजेंट. अब फोविया सेंट्रलिस में तो ये सारी कंडीशंस हैं, वेयर एज जो आपका पेरिफेरल रेटिना है वहाँ बहुत सारे रॉड्स एंड कोन्स कन्वर्ज करते हैं बाइपोलर सेल्स में, गैंग्लियन सेल्स में और फिर एमाक्राइन सेल से या फिर रॉड्स एंड कोन्स बाइपोलर सेल्स में, एमाक्राइन सेल्स में, गैंग्लियोनिक सेल्स में. यानी दोनों में कनेक्शन भी डिफरेंट है और उसमें जो है आपके कोन्स की शेप भी डिफरेंट है. ये किस लिए अभी हम देखते हैं. So this is a diagrammatic representation of fovea centralis on the right side, whereas the peripheral cones on the left side. Here you can see the cones are the longer, whereas here these are the fatter and the rods are also present over here. Whereas in the case of fovea centralis, rods are absent. 1:1 ratio connection, that is the cones, then the bipolar cells and then the ganglion cells.
whereas here the cones and rods which are going to merge, then send information to horizontal, then bipolar, then hemocline, and finally to the ganglion cells, and from the ganglion cells the optic nerve to the visual cortex. So this is the difference and diagrammatic representation. अब अगर हम बात करें कि विजुअल पाथवे जो कोन से लेके वही फोविया सेंट्रलिस पर, तो यहाँ जो है डिफरेंटली फंक्शन करता है एज कम्पेयर टू रॉड पाथवे. Neurons and nerve fibers which conduct the visual signals for cone visions are larger than those that conduct the visual signals for rod vision. यहाँ जो signals भी larger हैं, और यहाँ very important thing कि signals are conducted to the brain 2 to 5 times more rapidly as compared to rods. The circuitry is different. Circuitry मैंने पहले बता दी है कि वहाँ कौन होंगे, बाइपोलर सेल्स होंगे और गैंग्लियन सेल्स होंगे, जबकि वहाँ जो है दरमियान में एमाक्राइन सेल्स भी ज्यादा आ जाते हैं. 3 neurons in the direct fovea centralis pathway, cones, bipolar cells and ganglion cells. This is the repetition. कुछ हॉरिजेंटल सेल्स भी दरमियान में आते हैं जो कि लेटरली आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करते हैं, और एमाक्राइन सेल्स जो है इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर को भी इनहिबिटरी सिग्नल्स देती हैं. पेरिफेरी पर क्या है, रॉड्स, प्योर रॉड विजन है, 4 न्यूरॉन्स हैं, रॉड्स हैं, बाइपोलर सेल्स हैं, एमाक्राइन सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं. इसमें भी हॉरिजॉन्टल और एमाक्राइन सेल्स लेटरल कनेक्टिविटी और लेटरल इनहिबिशन सेंड करते हैं. अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब नाउ यू कैन कम अक्रॉस कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरिफेरल रेटिनल कोन्स एंड रॉड्स एंड सेंट्रल जो पाथवे आपका विच इज फोविया सेंट्रलिस, और स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली दैट इज फॉर रॉड्स. अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो रॉड्स एंड कोन्स जो बोथ हैं दे आर मोस्टली गोइंग टू रिलीज दिस ग्लूटामेट व्हिच इज गोइंग टू एट देयर सिनैप्स विद द बाइपोलर सेल्स. और जो एमाक्राइन सेल्स हैं वो मोस्टली एटलीस्ट 8 टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, लाइक गैबा, गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड, ग्लाइसिन, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन, इंडोलामीन, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर or all of them are normally function as inhibitory neurotransmitters. जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं टिल सिनैप्सिस, ग्लूटामेट, वेयरएज एमाक्राइन सेल्स क्या सिक्रीट करें, गैबा है, इंडोलामीन है, ग्लूटामेट है, ग्लाइसिन है, एसिटाइल कोलिन. अब अगर हम बात करें कि कंडक्शन किस तरह की है, तो कल भी हमने बात की थी कि जो रॉड्स एंड कोन्स में कंडक्शन है दैट इज ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन, नॉट द ट्रू एक्शन पोटेंशियल. The only retinal neurons that transmit visual signal by action potential are the ganglion cells. उसका क्या रीजन है कि गैंग्लियन सेल्स अगर हमने पीछे डायग्राम में देखें तो लॉन्गर जो ऑप्टिक नर्व है वो ऑल द वे सिग्नल लेके जाएगी ब्रेन को. सो लॉन्गर पाथवे के लिए अगर हम इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन की बात करेंगे तो वे जो है इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन है या ग्रेडेड पोटेंशियल है वो डाई ऑफ कर जाएगी अर्लियर. So longer pathway के लिए action potential required है, not for the case of your rods and cones. So electrotonic conduction किस तरह की conduction है, इसमें direct flow होगा electric current का, और वहाँ से जाएगा साइटोप्लाज्म में, वहाँ से nerve axon में जाएगा until the point of excitation all the way to the outward synapses. Even in the rods and cones, conduction from their outer segment to the inner segment and then to the synaptic body is by electrotonic conduction. When hyperpolarization occurs in response to light in the outer segment of the rod or cone, all the same degree of the hyperpolarization is conducted by direct current flow in the cytoplasm of all the way to the synaptic body and no action potential is required. एक simple point आप याद रखें कि सिंपल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन होगी एक्सेप्ट द गैंग्लियन सेल्स. इसलिए जब ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं रॉड और कोन से लाइक ग्लूटामेट या इनहिबिटरी, और वो स्टिमुलेट करेगा बाइपोलर सेल्स को या हॉरिजॉन्टल सेल्स को, तो सिग्नल इनपुट जाएगा to the output by direct electric current flow, not by action potential. So this electrotonic conduction is actually graded potential, not the electric action potential, which is going to obey. Action potential obey करती है all और none law का. यहाँ कोई all और none law नहीं है, यहाँ direct जो है current flow कर जाएगा
और मैसेज चला जाएगा रॉड्स एंड कोन से बाइपोलर सेल्स को या हॉरिजॉन्टल सेल्स को, और वहां से आगे गैंग्लियन सेल्स को जाएगा। अब गैंग्लियन सेल्स किस किस्म की पोटेंशियल देते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि वो एक्शन पोटेंशियल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनका लॉन्गर पाथ है। अब अगर ये हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल सेल्स जो हैं, स्पेसिफिक सेल्स के हम बारी बारी फंक्शंस भी देखेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, they are going to be stimulated and they are involved in the lateral inhibition or to enhance visual contrast। जैसे कि अगर आप ये देखें, एक लाइट जो पॉइंट है या एक जो लाइट है उसने आके स्टिमुलेट स्पेसिफिक पॉइंट को किया रेटिना में, तो सिर्फ एक पॉइंट जो स्टिमुलेट होगा उसका जो साइड वाले एरियाज हैं दे आर गोइंग टू बी इनहिबिटेड, और जो उसकी इमीडिएट विसिनिटी में दे आर नीदर एक्साइटेड नॉर इनहिबिटेड, ताकि ये जो लाइट बीम वाला एरिया है वो स्पेसिफिक लाइट को डिटेक्ट करेगा, और बाकी एरियाज जो हैं अगर जो है लाइट पूरी की पूरी रेटिना पर फॉल करे और कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो ना स्टिमुलेट हो तो वो जो डिफ्यूज सा इमेज आएगा। इसलिए स्पेसिफिक कंट्रास्ट देने के लिए जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं वो लेटरल इनहिबिशन प्रोवाइड करते हैं। The horizontal cells connect laterally between the synaptic bodies of the rods and cones and with the dendrites of bipolar cells. The outputs of horizontal cells are always inhibitory. This is very important कि ये जो है inhibitory provide करेंगे. So this is going to give the lateral inhibition to ensure transmission of visual pattern with proper visual contrast. This process is essential to allow high visual accuracy in transmitting contrast borders in the visual image। जैसे कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया है कि सेंट्रल पॉइंट जो स्टिमुलेट हो रहा है, लेटरल जो मैसेज किया हुआ है वो इनहिबिटरी है, इसलिए कंट्रास्ट प्रोवाइड करेंगे ये इसको आपके उसको जो है देने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो फंक्शन हो गया आपके हॉरिजॉन्टल सेल्स का। अगर हम बात करेंगे बाइपोलर सेल्स की, तो बाइपोलर सेल्स जो हैं, टू टाइप्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स आर गोइंग टू बी प्रोवाइड एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी सिग्नल्स इन द विजुअल पाथवे। डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ बाइपोलर सेल्स होंगे और हाइपरपोलराइजिंग टाइप ऑफ बाइपोलर सेल्स होंगे। Some bipolar cells are going to depolarize at the time when rods and cones are going to excite them, whereas others are going to hyperpolarize। अगर जो है बाइपोलर सेल्स वो हाइपरपोलराइजिंग हो तो ये रिसेप्टर की टाइप है मेटाबोट्रोपिक, और अगर वो डीपोलराइजिंग टाइप हो तो ये हैं आपके आइनोट्रोपिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अगर डीपोलराइजेशन है तो अगर होगा ये एक जो है डीपोलराइजेशन होगा इन रिस्पॉन्स टू व्हाट्स न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट neurotransmitter released by the rods and cones, and other responding by hyperpolarizing or inhibitory response। जो hyperpolarizing bipolar cells हैं वो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के थ्रू वर्क करेंगे, जो डीपोलराइजिंग है वो आइनोट्रोपिक के थ्रू रिस्पॉन्स करेंगे, और जो मीडिएटर है या न्यूरोट्रांसमीटर है डीपोलराइजेशन में ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है। अब इसमें यह कि दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होगा बिटवीन, साइमल्टेनियसली डीपोलराइजेशन भी हो रही है और हाइपरपोलराइजेशन भी हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन डीपोलराइजिंग एंड हाइपरपोलराइजिंग bipolar cells। This is going to provide another mechanism or second mechanism for lateral inhibition in addition to horizontal cell mechanism। पीछे हमने पढ़ा था कि horizontal cells भी lateral inhibition provide कर रहे हैं for visual contrast। तो अब जो bipolar cells हैं इनका एडिशनल काम है रेसिप्रोकली ये स्टिमुलेट होते हैं, कुछ डिपोलराइज हो रहे हैं, कुछ जो है वो आपके हाइपरपोलराइज हो रहे हैं। So this is going to provide another method for lateral inhibition। Because the depolarizing and hyperpolarizing bipolar cells, they are lying immediately against each other, this is going to provide a mechanism for separating contrast borders in the visual image, again to provide a specific or special contrast mechanism। These borders are, these hyperpolarizing and depolarizing cells are going to be stimulated। Lateral inhibition is going to be provided by number 1 horizontal cells, number 2 by bipolar cells। और bipolar cells कैसे प्रोवाइड करते हैं?
by depolarizing bipolar cells and hyperpolarizing bipolar cells. And this depolarization and hyperpolarization provide a mechanism for separating contrast border in case of this visual image. Third type of the cells which are present in the peripheral and as well as into the fovea centralis VN are the amacrine cells. 30 different types of amacrine cells have been detected so far. ये किसका पार्ट है amacrine cells? Again the part of direct pathway for rod vision, यानी peripheral में amacrine cells का ज्यादा रोल है. That is from rods to bipolar cells and then to amacrine cells and then to ganglion cells. ये सारे cells आपको layers of retina मैंने first ही पढ़ा दी हुई है और ये cells ऊपर नीचे present हैं as you have seen in the diagrams. जो amacrine cells है respond करते हैं strongly at the onset of the continuing visual signals, but the response dies off rapidly. This is very important कि पहले तो फौरी तौर पर visual signal को response करते हैं लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाता है. कुछ जो amacrine cells हैं strongly respond करते हैं at the offset of the visual signal, but again the response dies off, fades quickly. Still, other amacrine cells respond when a light is turned either on or off, and signaling simply a change in illumination irrespective of direction. इसका क्या मतलब है कि amacrine cells on phenomena भी बताते हैं, off phenomena बताते हैं, change in illumination भी बताते हैं कि कब light on हुई, कब light off हुई, लेकिन ये सारा response जो है ये जल्दी से fade out हो जाता है. एक और तरह के जो हैं amacrine cells हैं जो कि डायरेक्शनली सेंसिटिव हैं, बताते हैं कि किस तरफ से स्पेसिफिक टाइप से कौन सी तरफ से जो है आपकी लाइट जो है वो आ रही है. सो in a sense, many or most amacrine cells are actually behaving as interneurons that help analyze visual signals before they ever leave the retina. यानी कि analysis of the visual signals भी इसका काम है. सो 30 डिफरेंट तरह के amacrine cells हैं लेकिन मोस्टली इनका काम जो है ऑन फिनोमेना या ऑफ फिनोमेना, डायरेक्शनली सेंसिटिव या फिर आपके जो हैं चेंज इन इल्यूमिनेशन, इन सबको आपके वो डिटेक्ट कर रहे हैं. ठीक हो गया. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके गैंग्लियोनिक सेल्स हैं. गैंग्लियन सेल्स किस तरह के हैं? अबाउट आपने देखा था कि जो आपके कोन्स थे वो 3 मिलियन थे, 10 मिलियन आपके रॉड्स थे. इसी तरह जो आपके गैंग्लियोनिक सेल्स हैं दे आर अबाउट 1.3 मिलियन, 1.6 मिलियन सॉरी 1.6 मिलियन आपके गैंग्लियोनिक सेल्स हैं और इनका रिलेशन क्या है? 60 रॉड्स हैं, 2 कॉन्स हैं, उसके बाद गैंग्लियन सेल्स आते हैं, फिर ऑप्टिक नर्व आती है, वहां से वो ब्रेन में जाती है. अब अगर हम बात करेंगे तो 3 तरह के मेनली गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, W, X एंड Y. W की बात करेंगे, W सेल्स जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं दे आर 40% रिलेटेड विद रॉड विजन. अगर हम बात करें X जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं तो दे आर रिलेटेड पार्वोसेलुलर पाथवे, हमने बात की थी. W जो है वो मैग्नोसेलुलर पाथवे हैं, 55% हैं. दे आर रिलेटेड विद कलर विजन एंड विजुअल एक्यूटी. वाई सेल्स की बात करेंगे तो दे आर रिलेटेड विद द चेंज इन विजुअल इमेज, 5% जो है आपके प्रेजेंट है गैंग्लियोनिक सेल्स. उसके बाद अगर हम वन बाय वन इनकी बात करें तो W सेल्स जो हैं, W सेल्स ट्रांसमिट सिग्नल्स इन देयर ऑप्टिक नर्व स्लो वेलोसिटी पर and they are going to receive most of 40% present है most of their excitation from rods. और उसके बाद बाइपोलर सेल्स आते हैं और उससे पहले बाइपोलर सेल्स आते हैं और amacrine सेल्स आते हैं इन केस ऑफ रॉड विजन. ये बात हो रही है पेरिफेरल साइड पर. पेरिफेरल में आपको पता है ना ऊपर से हमारे रॉड्स एंड कोन्स थे, फिर आपके आ जाते हैं बाइपोलर सेल्स, फिर amacrine सेल्स और फाइनली गैंग्लियन सेल्स. इनका जो पेरिफेरल फील्ड है वो पता है आपको ब्रॉडर फील्ड है. दे आर सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग directional movements in the field of vision and probable important for crude rod vision under dark condition. ठीक हो गया. सो डार्क में रॉड विजन आपको वैसे ही पता है डिम लाइट या डार्क विजन होती है. सो W सेल्स आर ब्रॉडर विजन और डायरेक्शनल मूवमेंट्स. X सेल्स जो हैं, X सेल्स स्मॉलर फील्ड है, दे आर डू नॉट स्प्रेड वाइडली इन द रेटिना और ये हमने पीछे पढ़ी है कि ये discrete retinal location find details of the visual image में helpful है. Every X cell receive input at least one cone
X cell transmission is probably responsible for the color vision. This I have already told, 55% जो है ये present है. Y cells जो हैं ये कम है, 5% हैं, लार्जेस्ट हैं और ये ब्रेन को 50 मीटर पर सेकेंड या उससे भी ज़्यादा तेज़ी से मैसेज कन्वे करते हैं Y cells. ब्रॉडर डेंड्रिटिक फील्ड्स एंड ब्रॉडर जो रेटिनल एरियाज हैं वहाँ से मैसेज इनमें आ जाता है और ये बताते हैं आपको रैपिड चेंजेस इन द विजुअल फील्ड और विजुअल इमेजेस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताते हैं कि क्या जो आपके विजुअल फील्ड में कहाँ लाइट पड़ी है, क्या हो रहा है, लाइट बंद हो रही है, लाइट चल रही है, लेकिन ये नहीं बताते कि लोकेशन कहाँ है विद ग्रेट एक्यूरेसी. लेकिन ये जो है आई की मूवमेंट में हेल्प करते हैं टू द एक्साइटिंग विजन. वाई सेल्स 5%. ठीक हो गया. फिर अनदर क्लासिफिकेशन है रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स की. एक और तरह से भी कुछ साइंटिस्ट है प्राइमेट्स में और उसके अलावा ह्यूमंस में भी इसको गैंग्लियन सेल्स को जो है बताते हैं. दीज टाइप ऑफ द सेल्स आर, ये भी जो है इसकी क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिकली WXY. तो एक सेल्स है ना ये P और M cells और magnocellular and parvocellular cells जो है another classification of your retinal ganglionic cells. P cells are also known as beta cells in the central retina, mid-guest ganglionic cells, and they are going to project to the parvocellular cells, which are smaller cells, layer of the lateral geniculate nucleus of the thalamus. ये हमने पहले भी बात की थी कि पहले ब्रेन में पहुंचने से पहले दरमियान में lateral geniculate body आएगा जो कि थैलमस का एक न्यूक्लियस है. एम सेल्स जो हैं अल्फा सेल्स भी कहते हैं, पेरोसल सेल्स भी कहते हैं, लार्जर सेल्स या मैग्नोसेलुलर सेल्स पर लेयर ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो कि आपका थैलमस का प्रेजेंट है. फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन देता है ऑप्टिक ट्रैक्ट में और फाइनली आपकी इंफॉर्मेशन जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में. इसलिए गैंग्लियोनिक सेल्स अब हमने कितनी तरह के पढ़ लिए. W 40%, ब्रॉड विजन, X color vision, visual image or contrast, then there is that is of 55%, Y 5% और that is going to detect your लाइट कहाँ पड़ रही है, किस आपके कोई भी चेंज जो आपके विजुअल इमेज में हो रही है वो. Then another classification is the P cells and M cells. P is the parvocellular cells and smaller cells, and then this is going to be and over here into the case of lateral geniculate nucleus of the thalamus and then visual cortex. M cells is going to be project to the magnocellular larger cells and lateral geniculate nucleus to the thalamus and finally to the optic tract to the visual cortex. अब इनमें डिफरेंस क्या है P और M सेल्स में. मेन डिफरेंस है कि रिस्पेक्टिव फील्ड्स फॉर P सेल्स स्मॉलर है, M सेल्स का बड़ा है. P सेल्स जो हैं वो क्योंकि उसका स्मॉलर है तो इम्पल्सेस स्लो जाएंगी एज कम्पेयर टू योर M सेल्स. P सेल्स का रिस्पॉन्स कलर स्टिमुलाई को जो है सस्टेन्ड रहता है या ज़्यादा देर तक रहता है, जबकि रिस्पॉन्स ऑफ M cells are much more transient. P cells are generally sensitive to the color of the stimulus. M cells are not sensitive to the color stimulus. M cells are much more sensitive than the P cells to low contrast black and white stimulus, specifically black and white stimuli. ये वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं या कोई एग्जामिनर इसको एग्जाम में दे सकता है कि what are the differences between parvocellular pathway of the P cells and magnocellular pathway of the M cells. So these differences you should learn. थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स जिसका नाम नहीं पता, ये आपके गैंग्लियन सेल्स की थर्ड टाइप है और इसमें एक आपका फोटोपिगमेंट जो है मेलानोप्सिन के नाम से. टॉप्सिन भी आपने पढ़ा था जो कि आपका कोन्स पे प्रेजेंट है. रिडोप्सिन आपने पढ़ा है जो कि आपका रॉड्स पे प्रेजेंट है. इसमें थर्ड टाइप एक और स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पिगमेंट है जिसका नाम है मेलानोप्सिन. ज़्यादातर इस सेल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन ये सिग्नल सेंड करते हैं टू नॉन विजुअल एरियाज ऑफ द ब्रेन, यानी कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको सुन लें. ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस. अब वो क्या रोल प्ले करता है, वो मास्टर सिरकैडियन पेस मेकर है. व्हाट इज सिरकैडियन पेस मेकर रिदम? ये वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी की बताता है और सिंक्रोनाइज्ड होता है विद नाइट एंड डे. Suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus. So
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीसरी टाइप के जो फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल हैं, ये सिग्नल्स भेजते हैं नॉन विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन, और वो कौन सा है एरिया? सुप्रोक्लास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस व्हिच इज अ मास्टर सर्कैडियन पेसमेकर, यानी आपका दिन और रात में जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है। देन आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी के जो गैंग्लियन सेल्स हैं, पीछे हमने एमाक्राइन सेल्स की भी बात की थी, लेकिन गैंग्लियन सेल्स भी जो हैं ये जब एक्साइट होते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी ऑन एंड ऑफ रिस्पॉन्स को बताते हैं कि ये क्या ऑन हो रही है लाइट तो कुछ गैंग्लियन सेल्स जो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और ऑफ हो गए तो वो जो हैं हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें होता क्या है कि पहले भी हमने बात की थी कि बाकी तमाम जगह इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन है, यहाँ क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन पोटेंशियल इन द ganglion cells. It is from the ganglion cells that the long fibers of the optic nerve lead into the brain. Because of the distance involved, the electrotonic method of conduction is no longer appropriate over in the ganglion cells. Ganglion cells therefore transmits their information through repetitive action potential. इसमें होता क्या है कि जब भी आप लाइट जो है द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू लाइट आर कॉज्ड रिस्पेक्टिवली बिकॉज ऑफ बाय स्टिमुलेशन ऑफ, अब हमने पहले भी पढ़ा था कि दो तरह के गैंग्लियन बाइपोलर सेल्स थे, हाइपरपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ बाइपोलर सेल्स। तो ये जो है इसके अलावा ये जो हाइपरपोलराइजिंग या डीपोलराइजिंग बाइपोलर सेल्स हैं ये भी आपके ऑन ऑफ रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अलावा जो कुछ रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है आपके एमाक्राइन सेल्स से, लेकिन इसका जो एमाक्राइन सेल्स वाला है वो रिस्पॉन्स जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। The capability of eyes to detect changes in light intensity is strongly developed in the peripheral retina than at the central retina. Because एक छोटा सा minute सा gnat flying across the field of vision is instantaneously detected as compared to the gnat which is going to be sit silently. Conversely to the gnat which is sitting silently, जो gnat flying करेगा across the field of vision वो instantaneously recognize हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ द कलर सिग्नल्स बाय द गैंग्लियन सेल्स था, वो सिंगल गैंग्लियन सेल्स में बी स्टिमुलेटेड बाय सेवरल और ओनली अ फ्यू को। आपको पता है कि जो सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन में था वहाँ 1:1 करेक्शन था कि कोन्स थी, फिर बाइपोलर सेल्स थे, फिर गैंग्लियन सेल्स था। जो पेरिफेरी में है वहाँ जो मैनी कोन्स एंड रोड्स हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं। जब आपकी तमाम, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि when all the three types of the cones like red, blue and green types हैं, they are going to stimulate the same ganglionic cell. The signal transmitted to the ganglion cell is the same for any color of the spectrum, and the signal from the ganglion cell plays no role in detection of different colors. Instead, it is going to give the white signal. ठीक है ना? जब तीनों इकट्ठे कोन स्टिमुलेट हो रहे हैं तो सिग्नल कौन सा आपको प्रेजेंटेशन क्या आएगी? व्हाइट सिग्नल की आएगी। लेकिन अगर जो है some of the ganglion cells which are excited by only one color type of the cone and they are inhibited by the other type of the cone, then this is going to be giving to the stimulation by the respective color, like red causing excitation and green causing inhibition. कि अगर रेड कलर एक्साइटेशन दे रहा है तो रेड कलर की परसेप्शन आएगी, और ग्रीन इनहिबिट हो रहा है तो ग्रीन कलर की परसेप्शन नहीं आएगी। उसके अलावा हमारा जो है कंट्रास्ट कैसे जो है, कंट्रास्ट ही हमने पीछे भी पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, उसके अलावा जो बाइपोलर सेल्स थे, फिर एमाक्राइन सेल्स थे, तमाम के तमाम रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी कंट्रास्ट में भी सीन। Mechanism of lateral inhibition function in the eye to provide contrast detection and enhancement. This is actually transmission of the signal which are going to depicted contrast in the video scene, the role of lateral inhibition. कि excited हुए rods and cones और message आ गया आपकी horizontal cells को जिसने कि inhibitory signals भेजा है, फिर वहां से अगर message चला गया bipolar cells को तो stimulatory message चला गया ganglionic cells। So this is actually a typical arrangement of rods, horizontal cells and bipolar and ganglionic cells, showing excitation at the synapse between the rods and bipolar cells and the horizontal cells, but inhibition from
from the horizontal cells to the bipolar cells. यानी ये आपकी डायग्राम शो कर रही है कि सिग्नल जो है एक्साइटेशन हुई, उसने एक्साइटेट कर दिया हॉरिजॉन्टल सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स में, लेकिन साथ के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल सेल्स थे उसके बाद एक जो रॉड था उसने स्टिमुलेट किया बाइपोलर सेल्स को और वहां से मैसेज चला गया गैंग्लियोनिक सेल्स को। लेकिन साथ ही साथ ये एक सिर्फ मैसेज गया, लेकिन जो लेटरली जो हॉरिजॉन्टल सेल्स थे उन्होंने इसको इनहिबिट कर दिया टू प्रोवाइड लेटरल इनहिबिशन। ये लेटरल इनहिबिशन बताएगी कि इस तरफ अगर जो है डार्कनेस है और इस तरफ आपके लाइट है, so this is going to provide contrast in the visual area। जैसे कि पीछे डायग्राम में देखे थे कि जो स्टिमुलेट हो रहे हैं वहाँ ऑन रिस्पॉन्स होएगा और जो लेटरली इनहिबिट हो रहे हैं वहाँ आपका इनहिबिटरी इफेक्ट या लेटरल इनहिबिशन या ऑफ रिस्पेक्ट आएगा। अब कलर कंट्रास्ट कैसे होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रेसिप्रोकल इफेक्ट अकर बिटवीन द ब्लू कोन्स ऑन द वन हैंड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन कोन्स giving a reciprocal excitation inhibition relation between the blue and yellow color. Mechanism of this opposing effect of the colors. That is, one color type of the cone excite the ganglion cells by the direct excitatory route through a depolarizing bipolar cells, where the other color type inhibit the ganglion cells by the indirect inhibitory route through a hyperpolarizing effect. यानी कि अगर एक्साइटेशन हो रही है एक कलर के कोन्स की, वो एक्साइट हो रहे हैं, तो दूसरी तरह के कोन्स जो हैं वो दूसरी तरह के गैंग्लियोनिक बाइपोलर सेल्स जो हैं जो कि हाइपरपोलराइजिंग है वो उस कलर कोन को इनहिबिट कर देंगे। यानी एक कोन आ रहा है बाइपोलर सेल्स पर आया, वो डिपोलराइज हो गया, उस कलर का आपको पता चल जाएगा कि ये कलर प्रेजेंट है, लेकिन जो साथ ही साथ जो हाइपरपोलराइजिंग बाइपोलर सेल्स हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, तो वो कलर का इफेक्ट जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। Each color contrast type of ganglion cell is excited by one color but inhibited by the opponent color. Therefore, color analysis begins in the retina and not directly is only the function of the brain. This is extremely important जो है phenomena of your color detection. What is color contrast mechanism? Excitation of one cells and this is reciprocal. Reciprocal का क्या मतलब है कि एक ही साथ जो है कुछ सेल्स जो हैं बाइपोलर सेल्स वो एक्साइट हो रहे हैं, जबकि दूसरे जो बाइपोलर आपके सेल्स हैं बाइपोलर सेल्स वो आपके इनहिबिट हो रहे हैं। So this is reciprocal excitation inhibition mechanism. Depolarizing bipolar cells, other cells are going to inhibit the ganglion cells, and this is indirect inhibitory route through a hyperpolarizing bipolar cells. So one type of color contrast ganglion cell is excited, whereas opponent color is going to be inhibited. So color analysis is going to be begin in the retina. Last type of the cells which are present in horizontal cells, and these type of the cells are inhibitory cells. So far we have covered this whole chapter by different types of, by explanation of different types of these cells, and then on-off phenomena, lateral inhibition, and the functions of ganglionic type of, specific type of ganglionic cells. अब जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स हैं उसमें हम दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको एग्जाम में भी आ जाते हैं कि कौन सी टाइप के गैंग्लियोनिक सेल्स हैं और ये गैंग्लियोनिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं। यू हैव सीन इन द डायग्राम के गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं आपके डायग्राम में प्रेजेंट हैं। ये कौन सी वाली डायग्राम थी जिसमें कि ये नजर आ रहे हैं आपके तमाम तरह के सेल्स? This is the diagram. These are the ganglionic cells. तो ये हमारे है सेंट्रल फोबिया सेंट्रलिस की जो है जिसमें 1:1 है, कोन है, बाइपोलर सेल्स हैं और फाइनली आपके गैंग्लियन सेल्स हैं। यहाँ जो है कोन्स एंड रॉड्स हैं और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेल्स भी हैं, बाइपोलर भी हैं, एमाक्राइन भी हैं और फाइनली आपके गैंग्लियोनिक सेल्स हैं। 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एमाक्राइन सेल्स हैं। गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं आप बाइपोलर भी आपके दो तरह के हैं, हाइपरपोलराइजिंग जो कि ऑन ऑफ फिनोमेना प्रोवाइड करते हैं, और जो एमाक्राइन सेल्स हैं वो लेटरल इनहिबिशन भी करते हैं, विजुअल कंट्रास्ट भी करते हैं। फिर आपके फाइनली जो सारे की सारी बहुत ज़्यादा जो मैसेज लेके जाते हैं और जहाँ आपकी एक्शन पोटेंशियल्स भी जनरेट होती हैं। फिर हमने पढ़ा है कि यहाँ जो है इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शंस होती हैं।
ये अब आपका बेटे चैप्टर्स एंड हो गए। अब आप मुझे जो है इसमें बताएं कि क्या आपने आज पढ़ा है। जल्दी से मुझे सारे के सारे बच्चे आ जाएं। हसन तारिक जो है आज बड़ा कैमरा ऑन करके बैठा हुआ था, रोल नंबर 55, ये मुझे सबसे पहले बताएगा कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा है, क्या आपको समझ आया। जी हसन तारिक, रोल नंबर 55। आई वॉन्ट टू आस्क आज आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा है। और ये चैप्टर एंड हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप यू कैन आस्क फ्रॉम मी। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आज आप पूछ लें इस चैप्टर से। और उसके अलावा जो है अली मुश्तबा ऑन तो है इसका, ये भी बताएगा। जी सिर्फ इतना ही बता दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ योर गैंग्लियन सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, उठ जाए जी, जाग जाए बच्चों, गैंग्लियन। जी अरूज को WX, वेरी गुड जी, ठीक है, बिल्कुल सही है अरूज। फातिमा, रोल नंबर 72, वेरी गुड गुड, बिल्कुल ठीक है बेटे। अनदर क्लासिफिकेशन आप करके कर सकते हैं। पी सेल्स, पी भी कैपिटल लिखना है। जी आसम, बिल्कुल ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेल्स जो हैं वो गैंग्लियन सेल्स की टाइप्स नहीं है, ये अनदर टाइप ऑफ द सेल्स हैं जो कोलैटरल इनहिबिशन प्रोवाइड करते हैं। बाइपोलर सेल्स भी जो है लेटरल इनहिबिशन प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपसे गैंग्लियन टाइप जो गैंग्लियन सेल्स हैं उनकी टाइप्स पूछी हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the ganglionic cells. I am going to show you again. W cells, X cells, Y cells. Another classification is the P cell, M cells. आजकल हशाम जो है वो सो रहा है, बाकी कुछ लोग जाग रहे हैं। जी ये हसन तारिक जो है वो ऑन करके के गायब हो गया लगता है। अली मुश्तबा भी गायब है। इनकी तो मैं उसको कह के ना, हुसैन को कह के तो एब्सेंट लगवा दूं जो गायब है लोग, जिससे मैं पूछा करूँ वो ना अगर आंसर करे तो इसका मतलब वो लोग गायब है। ओके, जो आपका W सेल्स है वो क्या करते हैं जी हरिया, सामने मैंने स्लाइड शो की है आपको। X सेल्स क्या कर रहे हैं, वेरी गुड, अशाम जाके है। और जो X सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, विजुअल एक्यूटी एंड विजुअल कलर विजन। वाई सेल्स क्या कर रहे हैं, कितने परसेंट है, अव्वल और निसा ज़ारा भी जाग रही हैं और अमन भी जाग रहा है, ठीक है। वाई जो है चेंज इन विजुअल इमेज। ओके, और कौन सी क्लासिफिकेशन, सी, पी एंड एम सेल्स। नाउ यू कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द डिफरेंसेस, what are the differences between M cells and P cells? P cells and M cells के differences। P cells जो हैं पार्वोसेलुलर हैं, M cells जो हैं वो मैग्नोसेलुलर हैं। और इसके बाद इसके differences क्या हैं, ब्रॉडर फील्ड है in case of M cells, whereas smaller field in case of P cells। P cells जो हैं स्लोली इम्पल्सेस भेजता है, M cells जो हैं वो रैपिडली इम्पल्सेस भेजते हैं। P cells जो हैं कलर स्टिमुलस करते हैं और रिस्पॉन्स सस्टेन रहता है, whereas M cells are transient response। P cells कलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है, नॉट M cells are not sensitive to color stimulus। और ब्लैक एंड व्हाइट को एम सेल्स मोर रिस्पॉन्स, अगर एक पी सेल्स में कलर को दे रहे हैं तो लाजमी बात है जो एम सेल्स हैं वो आपके ब्लैक एंड व्हाइट को दे रहे हैं। ओके, टुडे दिस इज एनी क्वेश्चन सो फार, एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 51 फ्रॉम योर स्पेशल सेंसेस। नेक्स्ट डॉक्टर इजलाल विल टेक चैप्टर नंबर 52 और लास्ट चैप्टर ऑफ योर स्पेशल सेंसेस ऑफ विजन। अभी हेयरिंग रहती है आपकी, टेस्ट रहता है,
तो इसका जो है नेक्स्ट होगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मी। कोई क्वेश्चन नहीं है? यू अंडरस्टैंड द लेक्चर ऑल ऑफ यू? जो जाग रहे हैं, अरूज, अमन, हशाम, अवलनिसा, एनी क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।